Welcome back, guys. We are going to start our video lecture of chapter 1, Matter in our surrounding. And today we are going to discuss evaporation and boiling. So first of all, evaporation. So what is evaporation? As we already know, the particles of liquids are in a continuous motion. Okay, the particles of liquids are in a continuous motion because forces of attraction are already weak. So when they are in continuous motion, they are actually colliding with each other. So there are some particles who are at the surface, right? The particles at the surface which are already in a collision, they have kinetic energy and they have their speeds, right? So there are some small fraction of particles at the surface who are in a continuous motion colliding with each other. They will break the force of attraction between the particles at the surface level. If we see, so if these are the particles at the surface, right? Let me just increase the size so that you can understand it clearly. Okay, so at the surface you will find the gas particles are like this, and they are actually bounded by the force of attraction. If this is your surface, this one is your surface, so these particles are having force of attraction, right? So these two particles have force of attraction between each other like this, and also force of attraction like this, but uh, and outside the surface, up the surface, there is no force of attraction. So these particles which are in continuous motion and colliding with each other, there are the instance when these particles will overcome this force of attraction and will move out of the surface, move out of the liquid phase and convert it into vapor. This phenomena is known as इवापोरेशन. इवापोरेशन सिंपली जो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स जो रह जाता है आपका टेबल पे या क्लासरूम में, आप जब वाटर गिराते हो तो कुछ जो ड्रॉपलेट्स रह जाता है वो अपने आप ही क्या होता है, सूख जाता है. तो वो जो फिनोमेना है वो क्या है, इवापोरेशन है. इवापोरेशन जो भी हो रहा है वो आपके बॉइलिंग पॉइंट से पे नहीं हो रहा है. योर वाटर विल वेपोराइजेस एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बट इन इवापोरेशन water will vaporize, will convert into vapor, but not at 100 degrees Celsius, below its boiling point, right? At the room temperature, if there are some droplets, they will just disappear after some time. Why? Because of this evaporation. In evaporation, molecules are in continuous motion at the surface. Some molecules will break the force of attraction and will move into the vapor phase. So this phenomenon is known as evaporation. So there are some important points which you must keep in mind, like they have like liquid molecules has kinetic energy, so they are in continuous motion at the small fraction of at the surface. If a small fraction of particles at the surface have higher kinetic energy, ठीक है, उनका जो मोशंस होगा, जो कोलिजन्स होंगे पार्टिकल्स के बीच में, तो जब दो बॉल्स को टकराएंगे तो उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हायर काइनेटिक एनर्जी विल ब्रेक अवे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे विल कन्वर्ट इनटू वेपर. And third main point is evaporation will take place below boiling point, right? Below its boiling point. So now we are going to discuss what are the factors affecting the evaporation. So surface area, if surface area is more, तो no doubt if there is more surface area, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि सपोज यू हैव अ बकेट ऑफ वाटर, राइट? तो नॉर्मली बकेट ऑफ वाटर आप रखोगे तो इसको अगर इवापोरेशन हो भी रहा होगा तो इसको पानी पूरे बकेट को सूखने में बहुत टाइम लगेगा. बट अगर इस बकेट को आप गिरा दो, अपने क्लासरूम में पूरा फैला दो, अब ये जो वाटर होगा पूरे क्लासरूम में क्या होगा, फैल जाएगा. तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया ना. सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, इसका जो इवापोरेशन होगा वो फास्ट हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट आता है इंक्रीज द टेम्परेचर. तो नो डाउट इफ़ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, गर्मी में क्या होता है पानी तो ऐसे सूखता है. तो अगर इफ़ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड दिस विल इंक्रीज द वेपर स्टेट, राइट? ह्यूमिडिटी. व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या है कि एयर में, विंड में आपके वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए, वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है. अगर वाटर वेपर ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट होगा तो एयर की भी अपनी एक कैपेसिटी है कि वो वाटर वेपर को अपने पास रख सके. अब हाथ से ज़्यादा तो नहीं सकते ना, जैसे आपके दो हाथ है, आपके दोनों हाथों में हम वाटर बॉटल पकड़ा दें तो तीसरी वाटर बॉटल आप क्या करोगे, उससे पकड़ सकते हो, होल्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते. यानी कि आपकी भी क्या कैपेसिटी. इसी तरह विंड की भी अपनी क्या है, एक कैपेसिटी है जिसके अब वो
वाटर वेपर को अपने पास नहीं रख सकती, जिसकी वजह से अगर ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज़ होती है, इफ़ यू इंक्रीज द ह्यूमिडिटी तो एवापोरेशन विल डिक्रीज। नेक्स्ट है विंड स्पीड। तो विंड स्पीड क्या है, अगर हम विंड स्पीड को बढ़ा देंगे, अब पानी को सुखाने के लिए क्या करो, पंखा चला दो, पंखा फैन जब ऑन होगा तो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे बहुत तेज़ी से गायब हो जाते हैं, यानी कि एवापोरेशन विल इंक्रीज। अब एवापोरेशन से होता क्या है, नॉर्मली जब एवापोरेशन से ज़्यादा कूलिंग काज होती है। अगर आप पानी को छिड़क दो अपनी छत पर गर्मी के टाइम पर, रात में, शाम में, तो क्या होगा, छत क्या होती है, ठंडी हो जाती है, तो एवापोरेशन से क्या होता है, कूलिंग का प्रोसेस हो जाता है। या फिर अपने फर्श जब धोते हैं तो जैसे ही धोने के बाद कुछ टाइम का जब वो सूखता है तो वो ठंडा हो जाता है, तो एवापोरेशन से क्या होगा, कूलिंग होती है, यानी कि जब पानी जहाँ पर आता है वो पूरा पूरा एवापोरेट हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ कूलिंग हो जाती है। ऐसा होता क्यों, वाई देयर इज अ कूलिंग, बिकॉज लिक्विड क्या करता है कि सराउंडिंग की जो एनर्जी होगी, यानी कि अगर आपने एक गर्म सरफेस पे पानी को डाला, जैसे गर्म लोहे की रॉड को वाटर में डालो, तो होगा क्या कि वाटर की रॉड कुछ टाइम की थोड़ी देर बाद क्या होगी, जल्दी से कूल हो जाएगी, राइट। और उसकी जो हीट होगी वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, वाटर में ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिसमें आपने उसको वाटर डाला होगा। तो जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को, हीट एनर्जी को फ्रॉम द सराउंडिंग, इसीलिए एवापोरेशन काजेस कूलिंग, राइट। नाउ देयर इज अ कंपेरिजन बिटवीन एवापोरेशन एंड कूलिंग। सो इफ वी कंपेयर एवापोरेशन और कूलिंग, तो एवापोरेशन वो है, एवापोरेशन आपका क्या है, इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना, राइट। ये सरफेस पे होता है, जिस सरफेस, इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना, सरफेस पे जिस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी और वो ओवरकम करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज एवापोरेशन। बट इफ यू टॉक अबाउट बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम वाटर की बात करें तो 100 डिग्री जब सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तब जाके वाटर क्या होगा, वेपराइज होना शुरू होगा, यानी कि यहाँ पर बॉइलिंग में क्या होगा कि आपने पूरा का पूरा वाटर रखा, 100 डिग्री सेल्सियस जब आएगा उसके कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वेपर्स बनना स्टार्ट होगा। तो जो वेपर बनना स्टार्ट होगा तो पानी तो वो लगभग आपका पूरा गर्म हो जाएगा ना, पूरा का पूरा पानी क्या होगा, खौलने लगेगा, जो बबल्स होंगे वो नीचे से आपके उठने लगते हैं और पूरा पानी गर्म हो जाता है। यानी कि जो बॉइलिंग होता है ये आपका क्या है, एक बल्क फिनोमेना है, इट इज़ अ बल्क फिनोमेना। इवेपोरेशन क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ सरफेस फिनोमेना है। तो यहाँ पे लिखा भी है, एवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना और बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। So now there are some questions. Let's see. Which is a slow process, evaporation or boiling? So no doubt, evaporation is a slow process. State the effect of surface area on rate of evaporation. If you increase the surface area, evaporation rate will increase, no doubt. Why are we able to sip hot tea faster from saucer rather than from a cup? So this last question, I'm not going to solve this question. I want you to solve this question and answer me in the meeting, right? So third question I'm going to ask you. This is your homework. Third question is your homework. So just be prepared for it. Now what is Kelvin and Celsius scale? सो केल्विन क्या है कि जो आपकी डिग्री सेल्सियस है, डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो इतना रिलेवेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस आते हैं। जैसे आप बोलते हो -1 डिग्री सेल्सियस, तो -1 डिग्री सेल्सियस क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, या -2 डिग्री सेल्सियस, और जब गर्मी पड़ती है तो 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या है, सेल्सियस में दोनों साइन आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए हमने क्या किया है कि एक नया स्केल लाए हैं जिसका नाम है केल्विन। केल्विन में हमेशा वर्क करता है पॉजिटिव पे, राइट। इसमें नेगेटिव की साइन आता नहीं है। इसीलिए जो केल्विन होता है, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हैंस रिगार्डेड द बेटर स्केल देन सेल्सियस। याद रखना, केल्विन बेटर स्केल होता है क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेकिन सेल्सियस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होती हैं। इसलिए हमने क्या किया है कि अपनी सारी की सारी वैल्यूज़ को हम केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्जन के लिए नाउ हाउ वी कन्वर्ट द वैल्यूज, सो देयर इज अ सिंपल थिंग, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन, राइट। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273.16 केल्विन इज़ द वैल्यू, और जो 0 डिग्री सेल्सियस है उतना लेते हैं हम लोग 273 केल्विन, यानी कि 0.6 को हम लोग अभी नहीं लेंगे क्योंकि हम वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व वेरी मच कैलकुलेशन ऑन दिस टॉपिक। सो इट इज़ जस्ट अ नंबर फॉर यू टू यू जस्ट टू रिमेंबर द थिंग्स। वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द left hand side of the decimal digits, right? So you just have to remember 3 digits, 273 Kelvin. So degree Celsius, that is your 273 Kelvin. Suppose if I ask you what is the value of 10 degrees Celsius in Kelvin, so what we will do, you just write 273 plus 10, it will become 283
Kelvin is your answer, right? So it's just a very simple conversion. So in second line it is already written here, take Kelvin if you want to convert Celsius into Kelvin. So what you will do, just add 273 in Celsius. Suppose if I ask you just convert 50 degrees Celsius into Kelvin, so what you will do, just write down like this: Kelvin is equal to your value in Kelvin will be 50 plus 273, that will become 357 this is 323. If you add 50 plus 273, it will 323 Kelvin is your answer, right? So you can convert easily Kelvin Celsius to Kelvin. So which one is better scale? That is Kelvin, because it has a positive values. Now we are going to discuss another parameter, that is atmosphere. So what is atmosphere? It is the unit of measuring pressure exerted by a gas. तो एटमॉस्फेयर क्या है? एक यूनिट है उस प्रेशर की जो गैस एग्जर्ट करता है, राइट? सो द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर की एसआई यूनिट की बात करें तो वो पास्कल होती है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एक टर्म आता है व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 atm इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हाँ, ओके. सो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द प्रेशर ऑफ एन एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो एयर का प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. तो यहाँ पे दो टर्म इट इज़ ऑलरेडी वेरी क्लियर हियर. दैट इज व्हाट इज एटीएम, व्हाट इज एटमॉस्फेयर. इट इज़ अ यूनिट. ये यूनिट है किसकी? गैस की, जो प्रेशर अप्लाई करता है. इफ आई आस्क यू व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन यू हैव टू से दैट सर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, राइट? एटमॉस्फेयर क्या है? वो यूनिट है जो प्रेशर एग्जर्ट करता है गैस, राइट? और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ये प्रेशर है एयर का इन एटमॉस्फेयर, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और अगर हम बात करें कि प्रेशर की यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है? व्हाट इज एसआई यूनिट प्रेशर? दैट इज पास्कल, विच यू यूज इन फिजिक्स. ऑलवेज रिमेंबर, पास्कल इज यूज इन फिजिक्स. In chemistry we are going to deal with atmospheric pressure, right? So what is the relation between atmosphere and Pascal? So if you want to know what is the if you want to know that what is the relation between atmosphere and Pascal, so simply 1 atm is equal to 1.01 10 to the power 5. That is 1 atm is equal to 1.01 10 to the power 5. This is the simple relation between atm and Pascal. So now there are 3 questions. Now let's discuss one by one. What is the unit of what is the SI unit of temperature? That is Kelvin. Kelvin scale of temperature is regarded as a better scale than Celsius because Kelvin has always positive value. Convert 10 degrees Celsius into Kelvin scale. Simple. You just have to add 273 plus 10. That is equal to 382. 283 Kelvin is the answer, right? So now there are questions. I'm going to share these sheets with you. So whatever the questions are given here, you have to solve and write down in your fair copy. This is the first chapter. I think it is completed. Now I'm going to make one more video from the NCERT. That is the first chapter of NCERT, and I will make the combined whole video. That is the overview and summary of that video. So far you have to just see this video and complete this question and answers in your copy. Thank you guys.